Hi everyone. So today we are going to see ICSE class 10th treasure trove poem number 7, that is I Know Why the Caged Bird Sings. It is written by Maya Angelou. Okay, so today we are going to see next poem of ICSE class 10th treasure trove, that is the poem number 7. I hope the poem from 1 to 6 are clear to you. Okay, now we are going to see the 7th poem. Okay, and one more thing is there that your poems, okay, your English syllabus which was in class ninth, okay, which was in class ninth, has excluded, means whatever you had read in class ninth, it will not come in your board examination. Okay, now from daffodils, okay, from sixth, I think sixth, yeah, from sixth chapter in treasure trove poetry, from sixth chapter you will be having in your board examination. Rest five poem from 1 to 5, they will be not asked, the question will not come from there. Okay, so this is a good news or bad news for you. Okay, for me it is a bad news because they were also very good in poems. Okay, so yep, it's okay for you because it has now the burden which was on you has lightened little bit. So yep, so let's see our seventh very poem. I Know Why the Caged Bird Sings. Now first of all, it is written by Maya Angelou. I will tell you who is Maya Angelou. Okay, first of all, see this title. This title, I Know Why the Caged Bird Sings. What can you means identify? What can you ponder about it after reading this title? What can you ponder? Okay, means this title of this poem is very eye catching. Okay, okay, and this stand a question. Okay, this stand a curiosity of a reader. When a reader reads this title, the curiosity of that reader increases. Okay, it arises that why a caged bird, who is this caged bird, and why she is singing. Okay, why it is singing, why this caged bird is singing. ये caged bird गाना क्यों गा रही है ना? caged bird जो है, जो पिंजड़े में बंद है, वो गाना क्यों गा रही है ना? तो ये एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है जिसका आंसर मैं आप ही देने वाला हूँ. तो यहाँ पे देखो, जो केज्ड वर्ड है वो रियल में केज्ड वर्ड नहीं है, जो बर्ड है वो रियल में केज्ड. यहाँ पे केज्ड वर्ड का मीनिंग ये है, देखो जैसे कि हमने पहले भी पढ़ा है. ओके, आई थिंक यू हैव नॉट यू हैव नॉट you are not romanticizing it, okay, right now, but we have read this. Okay, we have read poem regarding to black and white people. Which poem was that? कौन सी poem थी जिसमें black और white people के बीच में criticize हो रहा था? कौन सी poem थी? Which poem that was that? Cold Within, right? उसी की तरह ये है एक poem, I Know Why the Caged Bird Sings. इसमें क्या है, यहाँ पे दो लोग हैं. ओके, बर्ड्स का मीनिंग यहाँ पे क्या है? बर्ड्स का मीनिंग है टू पीपल्स हैं यहाँ पे. एक है द वाइट पीपल हु आर बिलोंगिंग फ्रॉम द अमेरिका, इजंट इट, और एक है ब्लैक पीपल हु आर फ्रॉम अफ्रीका, हु आर एफ्रो अमेरिकन, है ना? कौन है वो? दे आर एफ्रो अमेरिकन, isn't it? They are Afro-American. Okay, who are they? Afro-American means जो है तो अमेरिका के, but their complexion, their color complexion is dark, isn't it? उनका color complexion dark है. ओके, तो वो हो गए हमारे एफ्रो अमेरिकन, जो कहाँ, अफ्रीका और अमेरिका दोनों के ही कौन है? हेरिस है, isn't it? दोनों के ही जो रहने वाले हैं. ओके, सो यहाँ पे क्या कहा गया है? यहाँ पे दो वर्ड्स हैं, एक तो फ्री वर्ड है, ठीक है, और एक केज्ड वर्ड है. जो फ्री वर्ड है वो है हमारा अमेरिकन पीपल हु आर वाइट इन कलर, हुज कॉम्प्लेक्शन इज लाइटर, इजंट इट? और यहाँ पे जो केज्ड वर्ड है, जो केज मतलब केज के अंदर है, जो किसके अंदर? केज के अंदर है, पिंजड़े के अंदर, वो है हमारे एफ्रो अमेरिकन जिनका कलर कॉम्प्लेक्शन डार्क है. ओके, तो यहाँ पे माया एंजेलो ये कहना चाह रही है कि मुझे पता है कि जो केज्ड वर्ड है, जो पिंजड़े के अंदर चिड़िया जो रहता है, आई एम सॉरी,
जो पिंजड़े के अंदर चिड़िया रहता है वो हमेशा हमेशा मतलब बोलता रहता है, राइट। हमेशा वो बोलता रहेगा, हमेशा गाता रहेगा, गाना गाता रहेगा। ओके, क्योंकि वो गाना क्यों गाता है? वो गाना इसलिए गाता है जिससे कि और लोग सुने उसे, और लोग और उसे सुने और उसके दर्द को समझें, इज़न्ट इट? तो ऐसा ही माया एंजेलो कहा है। माया एंजेलो के साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था क्योंकि वो ब्लैक कलर की थी। ओके, तो उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था, तो इसीलिए वो उनके अंदर जो पेन है ना, तो पेन को वो निकालना चाह रही हैं। ओके, मतलब एक तरह सप्रेस करते हैं लोग, आपको सप्रेस करते हैं, आपको डिप्रेस करते हैं, है ना। पीपल हु सप्रेस यू, डिप्रेस यू, तो आप क्या करते हैं, मतलब बहुत सफोकेटेड फील करते हैं, है ना। मतलब अपना मतलब जो एनवीनेस है, जो अपनी गुस्सा है, उसे निकालना चाहते हैं। तो माया एंजेलो के अंदर भी ये जो मतलब ये सफोकेशन हो रहा था, ये घुटन हो रही थी उनके अंदर इस चीज़ की, तो उन्होंने इस चीज़ को किस पर निकाला? उन्होंने इस चीज़ को निकाला अपने किस पर? अपनी पोइट्री पर, अपने पेपर पर, और उन्होंने एक पोएम को लिख डाला जिसका नेम है आई नो व्हाई द केस वर्ड सिंग्स। अब उन्होंने एक चीज़ और है, ओके, उन्होंने क्या किया है गाइस, उन्होंने अपने बर्थ से लेके, मीन्स एक इन्फेंट से लेके, जब वो एक इन्फेंट थी तब से लेके उन्होंने 17 ईयर्स तक की अपनी जितनी भी कहानी है, जितनी भी उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन हुए, जितने भी उनके साथ जो जैसा भी उनके साथ बिहेवियर हुआ है, ओके, जैसा भी 1 से लेके, मतलब इन्फेंट से लेके, जब वो छोटी बच्ची थी तब से लेके 17 ईयर्स तक की उन्होंने कहानी लिखी है इस पोएम के अंदर। इतना समझ आया? आई नो व्हाई द केस वर्ड सिंग्स के अंदर उन्होंने एक इन्फेंट, जितनी वो इन्फेंट थी, इन्फेंट से लेकर 17 ईयर्स तक की उन्होंने पूरी अपनी एक कहानी लिखी है। ओके, एक टीनेज, जब तक वो टीनेज की थी। ओके, तो आई होप नाउ द टाइटल इज क्लियर टू यू, आई नो व्हाई द केस वर्ड सिंग। ओके, यहाँ पे केस्ड वर्ड्स का मीनिंग ये नहीं है कि सच में एक चिड़िया, एक पंछी केज में है। यहाँ पे शो किया जा रहा है किसके बारे में? यहाँ पे शो किया जा रहा है इन लोगों, ब्लैक एफ्रो अमेरिकन और अमेरिकन पीपल के बीच में डिस्क्रिमिनेट हुआ है उसके बारे में। ओके, सो आई होप नाउ द टाइटल इज क्लियर टू यू। लेट्स सी द पोएम, लेट्स सी हु इज माया एंजेलो। Okay, before that we're going to see what we are going to do today. Okay, so today we're going to see introduction to the poetess, जो कि हम अभी लेकर आए हैं। ओके, देन हर ब्यूटीफुल कोट हम देखने वाले हैं, उनका एक ब्यूटीफुल सा कोट। देन स्टैंजा बाय स्टैंजा एक्सप्लेनेशन करेंगे हम। देन क्वेश्चन ऑफ द डे भी हम देखने वाले हैं, ठीक है। क्वेश्चन ऑफ डे एंड पॉइंट टू पॉन्डर, लास्ट में एक पॉइंट टू पॉन्डर है उसका। ये दोनों जो है ये एक क्वेश्चन है, ठीक है। इनका आंसर यू हैव टू गिव मी द आंसर, यू हैव टू गिव मी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, क्वेश्चन ऑफ द डे जिसमें एक क्वेश्चन रखा है मैंने, और पॉइंट टू पॉन्डर जिसमें एक क्वेश्चन रखा है, दोनों का आंसर आपको देना है मुझे। ओके, सो दिस इज ऑल वी आर गोइंग टू डू टुडे। ओके, सो लेट्स सी। Okay, she is Maya Angelou. Okay, she is Maya Angelou. I hope now you know who is Maya Angelou. You can see her color complexion is also little dark. Okay, and that's why she has faced many problems, many crises in her life. Okay, and he has wrote, जैसे कि मैंने अभी बताया, उन्होंने एक इन्फेंट जब थी, एक इन्फेंट होता है, इन्फेंट मानी एक बच्चा जब होता है, वहाँ से लेके एक 17 ईयर्स की टीनेज, इतने साल उन्होंने अपने इस पोएम के अंदर लिखे हैं, इतने साल उन्होंने इस पोएम के अंदर लिखे हैं। 1 से 17 ईयर्स तक की इन्होंने अपनी सारी कहानी लिखी है माया एंजेलो ने। ओके, सो लेट्स सी द इंट्रोडक्शन टू द पोएटेस। Okay, so Maya Angelou is an American author and poet. She has published 7 autobiographies. कितनी autobiographies हैं? 7 autobiographies हैं, 3 books of essay, okay, and several books of
पोइट्री एंड इज क्रेडिट विद अ लॉस्ट विद अ लिस्ट ऑफ प्लेज। मतलब इन्होंने क्या लिखा है, इन्होंने प्लेज लिखे हैं, इन्होंने पोइट्री लिखी है बहुत सारी, इन्होंने 7 ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं, 3 बुक्स लिखी हैं ऐसे की। ओके, मूवीज़ में इन्होंने अपना वर्क दिया है टेलीविज़न पर। ओके, और शो भी इन्होंने किए हैं स्पैनिंग मोर दैन 50 ईयर्स। कितने, 50 ईयर्स से ज़्यादा इन्होंने शो किए हैं। ओके, शी हैज़ रिसीव्ड डजन्स ऑफ अवार्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, डजन्स ऑफ अवार्ड इन्हें मिल चुके हैं। ओके, जस्ट वेट। She has received dozen of awards. Okay, and over 30 honorary doctoral degrees. Okay, Angelo is best known for her series of 7 autobiographies. इन्होंने कितनी ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं? 7 ऑटोबायोग्राफीज लिखी हैं, जिनसे इन्हें ये और ज़्यादा फेमस हुई, isn't it? And which focus on her childhood and early adult experience. Okay, the first, I know why the case was see, ये आ गया नाम इसका, I know why the caged bird sings। ये है इनकी पहली ऑटोबायोग्राफीज, जिनमें इन्होंने 17 ईयर्स तक की अपनी सारी लाइफ को डिस्कस किया है, जो कि मैं अभी बताने वाला हूँ। ओके, एंड ब्राउट हर इंटरनेशनल रिकॉग्निशन एंड एक्लेम। और इसी पोएम की वजह से पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड इन्हें जानता है माया एंजेलो के नाम से। यू कैन सी दिस वुमन, माया एंजेलो। ओके, सो लेट्स सी अबाउट पोएम। ओके, हर ब्यूटिफुल कोट वाज, सी, इफ यू डोंट लाइक समथिंग चेंज इट, इफ़ यू कान चेंज इट चेंज योर एटीट्यूड। मतलब अगर तुम्हें कोई चीज़ पसंद नहीं आती है तो तुम उसे चेंज कर दो। कोई चीज़ अगर नहीं पसंद आ रही है तो उसे चेंज कर दो, और अगर आप उसे चेंज नहीं कर सकते तो अपने एटीट्यूड को चेंज करो। ओके, सपोज आई विल गिव यू एन एग्जाम्पल। ओके, सपोज in a scorchy summer days, okay, in a hot summer days, you won't like summers, you won't like sun। okay, उनका जो सन का मतलब बहुत ज़्यादा एक्सट्रीम हीट होता है वो आपको पसंद नहीं है। ओके, सो यू कैन गो एंड चेंज दैट सन, है ना, पर आप ऐसा नहीं कर सकते। यू कैन नॉट प्ले विथ नेचर, इजंट इट। और अगर आप ऐसा नहीं कर सकते तो यू हैव टू मीन्स यू हैव टू थ्राइव ऑन दैट एनवायरमेंट ओनली। ओके, उसी एनवायरमेंट में आपको ढालना होगा अपने आप को। ओके, सो इट वॉज हर ब्यूटिफुल कोट, इफ़ यू डोंट लाइक एनी समथिंग चेंज इट। ओके, एंड इफ़ यू कान चेंज इट चेंज योर एटीट्यूड। कितनी अच्छी बात इन्होंने कही है। ओके, हैड शॉट टू हर। ओके, सो लेट्स सी हर फर्स्ट स्टैंजा एंड फर्स्ट पोएम। ओके, सो जैसे कि मैंने यहाँ बताया 2 वर्ड्स होती हैं, एक फ्री बर्ड है और एक केस्ड बर्ड है। अब ये जो फ्री बर्ड है ये हमारी कौन, ये हमारी अमेरिकन पीपल। ओके, और ये जो केस्ड बर्ड है, जस्ट वेट, ये हमारी अफ्रो अमेरिकन्स। ओके, ये हमारे एफ्रो अमेरिकन्स, समझ आया? ये हैं हमारे अमेरिकन्स और ये हैं हमारे एफ्रो अमेरिकन्स। ओके, सो आई होप नाउ क्लियर टू यू। ओके, नाउ आई कैन raise it. Okay, so the first stanza is saying, a free world leaps on the back of the wind and floats downstream till the current ends and dips his wings in the orange sun rays and dares to claim the sky। so यहाँ पे leaps का meaning होता है, just wait, meaning of एक मिनट, the meaning of leaps is jump। okay,
अ फ्री बर्ड लीप्स, लीप्स का यहाँ पे मीनिंग है जंप। अ फ्री बर्ड मतलब एक जो आज़ाद पक्षी होता है वो जंप करता है, जंप मतलब कहीं भी उड़ सकता है। ओके, कहाँ जंप करता है? ऑन द वैक ऑफ द विंड्स, विंड्स जिस दिशा में हमारी जो ब्रीजेस जा रही होती हैं, जिस दिशा में हमारी हवाएं जा रही होती हैं, उन्हीं दिशाओं में फ्री बर्ड होता है वो घूमता है। ओके, उससे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, वो कहीं भी घूम सकता है, कहीं भी आ जा सकता है ना। एंड फ्लोट्स डाउन स्ट्रीम टिल द करंट एंड्स, और नीचे की तरफ उड़ता है, पहले तो ऊपर की तरफ उड़ता है विंड में, फिर नीचे की तरफ उड़ता है डाउन स्ट्रीम में। डाउन स्ट्रीम का मीनिंग होता है रनिंग वाटर। एक मिनट, डाउन स्ट्रीम का मीनिंग होता है नीचे की तरफ जो झरने जा रहे होते हैं। फ्लोइंग ऑफ वाटर डाउनवर्ड्स, डाउनवर्ड साइड में जो झरने जा रहे होते हैं उन्हें हम कहते हैं डाउन स्ट्रीम। ओके, डाउन स्ट्रीम का मीनिंग होता है जो करंट्स होते हैं, विंड्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट, टिल द करंट एंड्स, टिल द करंट एंड्स, करंट का मीनिंग यहाँ पे है एयर या वाटर का बहना। ओके, एयर और वाटर का बहना, फ्लोइंग ऑफ वाटर और एयर, मतलब जब तक जो एक फ्री बर्ड होती है वो कहीं भी घूम सकती है। ओके, विंड्स की तरफ, विंड्स के साथ कूदती है। ओके, और करंट्स के साथ, जब तक करंट्स मतलब जब तक वाटर या एयर का फ्लो होना बंद नहीं हो जाता तब तक वो नीचे की तरफ फ्लो करती है, क्योंकि पानी, ऑब्वियसली पानी कहाँ फ्लो करता है? नीचे की तरफ फ्लो करता है। तो वो कहीं एक फ्री बर्ड, यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कि फ्री बर्ड के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। फ्री बर्ड मतलब अफ्रीकन पीपल, अमेरिकन पीपल के ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं, वो जो चाहे वो कर सकते हैं, है ना। उनका जब मन चाहे जहाँ चाहे वहीं घूम सकते हैं, दे कैन वैंडर एनीवेयर, है ना, उनके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। ओके, वो हवा की तरफ जा सकते हैं और झरनों की तरफ जा सकते हैं, जैसे कि एक फ्री बर्ड होती है वो कहीं भी घूम सकती है, इजंट इट। एंड डिप्स हिज विंग इन द ऑरेंज सनरेज, और अपने विंग्स को ऑरेंज सनरेज में डिप करती है ना। सुबह सुबह जब आप सूरज को देखते हैं तो कैसे लगता है? बिल्कुल ऑरेंज, है ना, ऑरेंज, डार्क ऑरेंज कलर रहता है उसका, है ना। तो और शाम के वक्त भी यही रहता है। तो सुबह शाम के वक्त को यहाँ पे बताया गया है कि सुबह शाम वो अपने विंग्स को डिप करती है, किसमें? ऑरेंज सनरेज में, ऑरेंज सनरेज में अपने विंग्स को डिप करती है। एंड डेयर्स टू क्लेम द स्काई, वेरी इंपॉर्टेंट, और ये डेयर करती है, मतलब डेयर करती है कि मैं किसी न किसी दिन स्काई को जरूर छूऊंगी। ये किसकी बात बता रहे हैं? फ्री, जो फ्लाइंग बर्ड है। ओके, जो जिसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होती हैं। अमेरिकन पीपल डू नॉट हैव एनी रिस्ट्रिक्शंस, राइट? ओके, सो वो कहीं भी जा सकते हैं, उनका मन जहाँ चाहे वहाँ जा सकते हैं। ओके, और जो अफ्रीकन पीपल होते हैं उनके ऊपर कई सारी रिस्ट्रिक्शंस होती हैं, है ना। वो लोग किसी वाइट पीपल के साथ बैठ नहीं सकते, है ना, ये होता है ना। सो यहाँ पे ये कहने की कोशिश की गई है कि जो फ्री बर्ड्स होती हैं उनके लिए वो कहीं भी जा सकती हैं, उनकी फ्रीडम को, वो अपनी फ्रीडम को एक्सपीरियंस कर सकती हैं, है ना। सो आई होप नाउ दिस स्टैंडर्ड इज क्लियर टू यू। अब यहाँ पे सेकंड स्टैंडर्ड में बात की गई है केज्ड बर्ड की, जो पिंजड़े के अंदर है, उनकी लाइफ को बताया गया है। मतलब एफ्रो अमेरिकन्स, जो ब्लैक पीपल हैं, उनकी लाइफ को यहाँ पे बताया गया है। बट अ वर्ल्ड दैट स्टार्ट्स डाउन हिज नैरो केज, क्या यहाँ पे क्या गया है? पर एक जो चिड़िया है, स्टार्ट्स का मतलब यहाँ पे होता है ट्रैक हो जाना, मतलब फंस जाना। ओके, ट्रैप हो जाना। ओके, और ये जो स्टार्स है यहाँ पे एक आयरनी भी है, इट इज ऑल्सो एन आयरनी हियर। ओके, एपिडोम आयरनी, यहाँ पे एक आयरनी भी है स्टार्स वर्ल्ड। ओके, तो यहाँ पे क्या गया है? जो वर्ल्ड, जो चिड़िया पिंजड़े के अंदर होती है ना, जो चिड़िया पिंजड़े के अंदर होती है, वो क्या करती है? डाउन हिज नैरो केज, मतलब वो छोटे से पिंजड़े में कैद हो रहती है ना, छोटे से पिंजड़े में कैद रहती है। कैन सेल्डम सी थ्रू हिज वॉल्स ऑफ रेज,
कैन सेल्डॉम, सेल्डॉम का मीनिंग यहाँ पे होता है बहुत ज़्यादा मुश्किल से। ओके, हार्डली, कैन सेल्डॉम सी थ्रो हिज बार्स ऑफ रेज, मतलब वो बहुत मुश्किल से ही उन बार्स के उस तरफ देख सकती है। मतलब यू कुड सी दीज बार्स, कितने छोटे छोटे बार्स यहाँ पे लगाए गए हैं, है ना, कितना छोटा सा स्पेस है यहाँ पे, इन दोनों के बीच में स्पेस कितना छोटा है। तो वो यहाँ पे कहा गया है कि जो चिड़िया ट्रैप होती है किसमें, केज में, पतले से केज में, एक छोटे से केज में जो चिड़िया ट्रैप होती है वो क्या नाम है, जो बार्स होती हैं पिंजड़े की उसके उस तरफ नहीं देख सकती है ना, बहुत मुश्किल से देख पाती है ना, उस बार्स, इन बार्स के उस तरफ नहीं देख पाती। हिज बार्स ऑफ रेज, रेज का मतलब होता है यहाँ पे बहुत एंग्री, ओके, बहुत ज़्यादा एंग्री हो जाना, तो वो गुस्से से अपनी चोंच को पटकती रहती है उस पिंजड़े पर, है ना, वो मतलब इधर उधर पटकती रहेगी, ओके, इधर उधर पटकती रहेगी। क्यों पटकती है अपनी चोंच को, वो ये चाहती है कि जिससे कोई ऐसा रास्ता मिल जाए यहाँ पे, कोई ऐसा रास्ता जिससे मैं यहाँ इस दुनिया से बाहर निकल सकूँ, है ना। तो इसलिए जो ये वर्ड है वो अपनी चोंच को हमेशा से पटकती रहती है। कहाँ कहाँ पटकती रहती है, इस पिंजड़े में, isn't it? His wings are clipped and his feet are tied, so he opens his throat to sing. इसके विंग्स को क्लिप्ड कर दिया जाता है, क्लिप्स मीन्स कट शॉर्ट, कट शॉर्ट कर दिया जाता है, कट शॉर्ट कर दिया जाता है, ओके। हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइट, और उसके पैरों को बांध दिया जाता है ना। सो ही ओपन्स हिज विंग, ओपन हिज थ्रॉट टू सिंग, तो क्योंकि उसके हाथ पैरों को बांध दिया गया है, इजंट इट, तो अब उसके पास कुछ और साधन नहीं है अपनी मदद मांगने के लिए, तो वो अपने चोंच को, इस पार्ट को, इस बीक को ही अपना एक वेपन मानकर बजाती है, बजाने का मतलब एक बोलती है, ओके, सिंग करती है, जिससे ये आवाज़ जो है वो दूर दूर तक जा सके और अपनी फैमिलीज़ को ये बता सके कि मैं पिंजड़े के अंदर हूँ और मेरी हेल्प करो, ओके। तो यहाँ पे है ये केस्ड वर्ड की बात। अभी जो हमने देखा था वो फ्री बर्ड की बात है कि फ्री बर्ड कहीं भी घूम सकती है, उसके ऊपर कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं होते, ओके। तो ये तो हो गया, वो तो था फ्री बर्ड का, ओके, लाइक मीन्स अमेरिकन्स का। अब ये है एफ्रो अमेरिकन्स का। तो एफ्रो अमेरिकन्स यहाँ पे कहना चाह रहे हैं कि ब्लैक पीपल के लिए कोई अपॉर्चुनिटीज़ नहीं होती हैं, ओके, उन्हें कोई भी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी जाती, उन्हें एक तरीके से जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है ना, जेल के अंदर बंद कर दिया जाता है और उन्हें अपना टैलेंट दिखाने नहीं दिया जाता है, ओके, जिसकी वजह से वो लोग बहुत ज़्यादा लाइक पीछे रह जाते हैं, है ना, वो लोग पीछे रह जाते हैं, उनकी एजुकेशन पावर भी लो डाउन कर दी जाती है, उन्हें मतलब बहुत बुरी तरीके से ट्रीट किया जाता है, यहाँ पे ये बताया गया है, ओके। तो ओके, लेट्स मूव टू थर्ड स्टैंजा। थर्ड स्टैंजा हमारा कह रहा है, जस्ट वेट, ओके, द केस्ड बर्ड सिंग्स विद द फियरफुल ट्रिल। और जो केस्ड बर्ड होती है, जो पिंजरे के अंदर चिड़िया है, वो फियरफुल ट्रिल से, फियरफुल ट्रिल का मतलब होता है बहुत ज़्यादा, मतलब ट्रिल हो जाना, ट्रिल मानी ट्रेम्बलिंग, ट्रेम्बलिंग मतलब शिवर हो जाना, बहुत ज़्यादा काँप काँप कर वो गाती है। केस्ड बर्ड बहुत डर डर के गाती है, ओके। ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉक्ड फॉर स्टिल, ऑफ थिंग्स अननोन, उसे पता नहीं होता है वो क्या करे, तो वो सिर्फ गाती है, बहुत डर डर कर, सहम सहम कर गाती है। ऑफ थिंग्स अननोन बट लॉक्ड फॉर स्टिल, फॉर लॉक्ड मीन्स मतलब उससे ये पता होता है, उसकी डिज़ायर होती है वो कब तक, उसे ये पता होता है कि वो ना जाने कब उड़ पाए, कब यहाँ से इस पिंजरे से बाहर निकल पाए और कब वो आसमान को देखे। तो मतलब अपनी इच्छा को पूरा करने के लिए वो इस पिंजरे के अंदर ही गाती है, पर उसकी जो आवाज़ होती है वो बहुत ट्रेम्बलिंग कर रही होती है, बहुत ज़्यादा लाइक डरी हुई होती है, ओके।
बट लॉक्ड फॉर स्टिल, फॉर लॉक्ड का मीनिंग होता है किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा डिज़ायर होना। ओके, तो उसकी एक ही डिज़ायर होती है कि वो कब इस पिंजरे से बाहर उड़े, आसमान में, खुले आसमान में उड़े, और कब वो पूरे संसार को देखे, isn't it? And his tune is heard on the distant hill, और उसकी जो आवाज़ होती है, जो वो पिंजरे में गा रही होती है, उसकी जो आवाज़ होती है वो कहाँ, डिस्टेंट हिल मतलब दूर दूर पहाड़ों तक जाती है। ओके, ईको होती है उसकी आवाज़ क्या होती है, ईको होती है दूर दूर पहाड़ों में जाकर। ओके, फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, क्योंकि वो जो केज्ड बर्ड है वो किस लिए गा रही होती है, फ्रीडम के लिए। ओके, एक मिनट, किस लिए, फ्रीडम के लिए वो गा रही होती है। ओके, सो लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। यहाँ पे कहा गया है कि जो केस्ड वर्ड मतलब जो एफ्रो अमेरिकन पीपल होते हैं उन्हें डरा दिया जाता है। ओके, उनके ऊपर बहुत सारे रिस्ट्रिक्शंस लगा दी जाती हैं जिसके बाद वो लोग डर जाते हैं, और जिसकी वजह से वो कोई भी मतलब अपने टैलेंट को वो निकाल नहीं पाते हैं, है ना, अपने टैलेंट को अंदर ही रख देते हैं। जैसे कि पहले की अब जैसे ये जो ब्लैक पीपल होते थे, जो पोइट होते थे, जो अच्छा लिख सकते हैं, उन्हें दबा दिया जाता था। दे यूज्ड टू सप्रेस, उन्हें सप्रेस कर दिया जाता था। क्यों? क्योंकि वो अपनी पोएम्स को लिख ना पाए। ओके, तो वो छुप छुप कर बहुत अपने पोएम्स को लिखते थे, और अपनी उन पोएम्स को, ये माया एंजेलो के साथ भी हुआ है, उन पोएम्स के अंदर अपना दर्द लिखते थे उन पोएम्स के अंदर, जैसा कि इन्होंने लिखा है। ओके, अपने बारे में यहाँ पे डिफ्रेंशिएट किया गया है कि एक जो फ्री वर्ड होती है और एक जो हमारा केस्ड वर्ड होता है, उन दोनों के बीच में क्या डिफरेंसेस होते हैं, क्या क्या क्राइसिस ये केस्ड वर्ड को फेस करने पड़ते हैं। ओके, सो आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्टैंजा। Okay, so the free world thinks of another breeze, and the trade winds soft through the sighing trees, and the fat worms waiting on a darn bright lawn, and he names the skies owns. यहाँ पे क्या क्या आ गया है, जो फ्री वर्ड्स होती हैं वो थिंक करती हैं अनदर ब्रीज। ब्रीज होता है हमारा सॉफ्ट जो मूविंग एयर्स होती हैं। ओके, मूविंग एयर या विंड। ओके, सॉफ्ट मूविंग विंड्स। ओके, सो जो फ्री बर्ड होती है वो एक और हवा के झोंके को आने का इंतज़ार करती रहती है। आप इसमें देख सकते हैं, दिस फ्री बर्ड इज़ फ्लाइंग वेरी लाइक हैप्पीली, इज़न्ट इट? इसे कोई भी डर नहीं है, पूरे उसमें पूरा जो स्काई है इसने अपना मान लिया है ना, पूरी स्काई में उड़ रही है। ओके, एंड द ट्रेड विंड्स सॉफ्ट थ्रू द साइन ट्रीज, और जो ट्रेड विंड्स होती हैं, ट्रेड विंड्स वो विंड्स होती हैं, ज्योग्राफी में आपने पढ़ा होगा, जो कहाँ से आती हैं, जो हमारे समुद्र की तरफ से आती हैं, उस साइड से आती हैं, जिसकी वजह से हमारे जो ट्रेड विंड्स, इनका इसलिए नाम होता है क्योंकि ये पहले के ज़माने में ट्रेड करने के लिए बहुत काम आती थी। इन्हीं से हमारे जो शिप्स होते हैं वो चलते थे पहले, कि इसलिए इनका नाम ट्रेड विंड्स है। ओके, तो वो क्या होता है, ट्रेड विंड्स थ्रू द साइन ट्रीज, मतलब साइन ट्रीज मतलब जो ट्रीज़ की आवाज़ आती है ना, कभी कभी आपने देखा हो आंधी आती है, बहुत ज़्यादा स्टॉर्म आता है, तो ट्रीज़ की कैसे आवाज़ करते हैं बहुत बुरी तरीके से, तो उनका यहाँ पे मतलब है। ओके, तो जो फ्री बर्ड्स होती है वो एक और ब्रीज के आने का इंतज़ार करती है अपनी अगले उड़ान के लिए। ओके, और जो ट्रेड विंड्स हैं वो आती हैं कहाँ, साइन ट्री पर। साइन ट्री मतलब ट्रीज़ की आवाज़ करते हुए आती हैं वो बहुत ज़्यादा, जिससे उन्हें पता चल जाए कि ट्रेड विंड्स आ रही हैं। And the fat worms waiting on a down bright lawn, and he names the sky's own. और जो फैट वर्म्स होते हैं, फैट वर्म्स मतलब जो कीड़े वगैरह होते हैं, जो फैट वर्म्स होते हैं वो उस पक्षी का इंतज़ार कर रहे होते हैं कब वो फ्री वर्ड आए और मुझे खाए, है ना। डाउन ब्राइट लॉन में, डाउन ब्राइट लॉन मतलब सुबह के टाइम, सुबह की पहली किरण में वो लोग जो फैट बॉम्ब्स होते हैं देवर वेटिंग। ओके, वो वेट कर रहे होते हैं फॉर द
फ्री बर्ड, कि कब फ्री बर्ड आए और मुझे खाए। ओके और जो फ्री बर्ड है वो समझती है उस टाइम पे, सुबह के टाइम पे जब वो उड़ते हैं फ्री बर्ड्स, तो वो समझते हैं कि पूरा का पूरा स्काई उन्हीं का है। ओके उन्हें लगता है कि पूरी प्रॉपर्टी स्काई की उन्हीं के पास है। तभी कभी आपने देखा होगा सुबह सुबह जो बर्ड्स होती हैं वो एक ग्रुप बना के, एक पूरा होस्ट बना के चलती हैं, उड़ती हैं ऊपर, है ना, एक बहुत सुंदर से पैटर्न में उड़ती हैं, है ना। तो वो क्या समझती हैं, दे पॉन्डर दैट द स्काई, द होल स्काई इज देयर ओन प्रॉपर्टी, है ना। So this was your story. I hope this is also clear to you. Let's go to the next stanza. But a caged bird stands on the grave of dreams and his shadow shouts on a nightmare scream. पर जो केज वर्ड होती है, वो अपने ही ग्रेवयार्ड पे खड़ी होती है, अपने ही कब्र पर खड़ी होती है। क्यों खड़ी होती है? क्योंकि उसके सारे सपने को कुचल दिए जाते हैं, है ना। उसके सारी डिज़ायर्स, उनके सारे एम्स, पैशन, सारे सब कुछ रियून कर दिए जाते हैं बाय द फ्री बर्ड्स। ओके फ्री बर्ड्स मतलब बाय द अमेरिकन्स, जो एफ्रो अमेरिकन्स हैं उनके सारे ड्रीम्स को रियून कर दिया जाता है बाय अमेरिकन्स। ओके तो क्या होता है यहाँ पे, जो एफ्रो अमेरिकन्स होते हैं वो अपने ही ड्रीम्स की, अपनी जो जितने भी उन्होंने ड्रीम्स सोचे होते हैं, जितने भी उन्हें ड्रीम्स को पूरा करना होता है, उनकी ही कब्र पर वो लोग खड़े होते हैं। और रात के टाइम पे जब वो लोग सोते हैं, ओके रात के टाइम पे जब वो बर्ड सोती है, फ्री बर्ड केज्ड बर्ड सोती है रात के टाइम पे, तो उसके ही जो भयानक सपने होते हैं, जो स्पूकी नाइट ड्रीम्स होते हैं, वो उन्हें ही डराते हैं। इसी बर्ड को वो सपने डराते हैं। ओके एंड जस्ट वेट, जब एंड नाइटमेयर स्क्रीम, हिज विंग्स आर क्लिप्ड एंड हिज फीट आर टाइड, सो ही ओपन्स हिज थ्रॉट टू सिंग। ओके तो यहाँ पे होता है केज्ड बर्ड जो है वो अपने ही ग्रेवयार्ड पे खड़ी है, अपने ही सपनों के कब्र पर खड़ी है, और उसकी जो शैडो होती है वो रात के टाइम पे उसे डराती है। वो इतनी सहम जाती है कि वो अपने ही शैडो से रात के टाइम पे डरती है। और जो उसकी चीखें होती हैं, जो उसने सहा होता है, वो सारी चीखें उसकी रात के सपनों में आती है और उसे डराती है कि वो सपना देखती है कि उसके विंग्स जो हैं वो क्लिप्ड कर दिए, उसके विंग्स को कट शॉर्ट कर दिए, काट दिया गया है, उसके फीट्स को बांध दिया गया है ना। और वो सिर्फ चिल्ला रही है, सिर्फ गाना गा रही है अपने आप को छुड़ाने के लिए, और कुछ नहीं कर सकती। कभी आपने देखा होगा कि हम लोग बहुत डरे हुए होते हैं, बहुत ज़्यादा, मतलब किसी चीज़ से बहुत सप्रेस होते हैं, कोई हमें बहुत सप्रेस कर रहा है, बहुत दबा रहा है हमें, है ना। तो हम लोग ज़्यादा अगर ओवर हो जाता है तो क्या होता है, रात में उसी चीज़ के सपने आने लगते हैं, फिर हम लोग वो ही बोलने लगते हैं रात के टाइम, है ना। जैसे किसी ने पकड़ रखा है तो हम लोग कहते हैं बचाओ बचाओ, रात के टाइम ऐसे चिल्लाते हैं ना। तो ऐसा ही इस केज्ड बर्ड के साथ हो रहा है, मतलब इसके साथ इतना ज़्यादा डिस्क्रिमिनेशन हुआ है, इतना ज़्यादा इसके साथ लाइक बुरा हुआ है कि इससे रात में भी वही सपने आ रहे हैं कि कोई इसे दबा रहा है, किसी ने इसके विंग्स को, इसकी अपॉर्चुनिटीज़ को, इसके पैशन, इसके ड्रीम्स को काट डाला है और इसे बांध दिया है ना। तो दिस वॉज योर स्टोरी। ओके नाउ नेक्स्ट इज द केज्ड बर्ड सिंग्स विद अ fearful trill of things unknown but locked for still, and his tune is heard on the distilled hill. For the caged bird sings of freedom. Caged bird होती है, just wait, yep, okay. जो caged bird होती है वो गाती है with fearful trills. I think ये जो stanza है दोबारा से repeat हुआ है, isn't it? Yep, just wait. यहाँ पे थर्ड स्टैंजा को दोबारा रिपीट किया गया है। ओके मैं दोबारा समझा देता हूँ। जो केज्ड बर्ड होती हैं वो बहुत डरी आवाज़ से, बहुत सहमी हुई आवाज़ से गाते हैं। ओके ऑफ थिंग्स अननोन, क्योंकि उन्हें पता नहीं होता है। ओके बट लॉक्ड फॉर स्टिल एंड हिज ट्यून इज हर्ड ऑन द डिस्टेंट हिल। और जब वो चीखते हैं उनकी जो आवाज़ होती है वो कहाँ तक जाती है, दूर दूर पहाड़ों तक उनकी आवाज़ गूंजती रहती है, इको करती रहती है। फॉर द केज्ड बर्ड सिंग्स ऑफ फ्रीडम, क्योंकि जो केज्ड बर्ड होती है वो किस चीज़ के लिए गा रहे हैं, अपनी फ्रीडम के लिए गा रहे हैं। जो एफ्रो अमेरिकन पीपल होते हैं वो क्या चाहते हैं, सिर्फ वो यही चाहते हैं कि उनके साथ अच्छा जो अमेरिकन्स हैं, जो वाइट अमेरिकन हैं, वो उनके साथ अच्छे से
बिहेव करें, है ना, उनका रिस्पेक्ट करें, एटलीस्ट उन्हें कुछ कर नहीं सकते तो उनकी रिस्पेक्ट तो कर ही सकते हैं, इज़न्ट इट? तो वो यही तो चाहते हैं, पर वो लोग ऐसा नहीं करते हैं बिकॉज ऑफ देयर कलर। तो इसलिए एक कलर बहुत ज़्यादा फैक्टर, एक बहुत ज़्यादा ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से जो कॉलोनीज़ होती हैं ना, जो कॉलोनीज़ होती हैं फॉरेन कंट्रीज़ में, स्पेशली इन अमेरिका, उन्हें डिवाइड कर दिया गया है कि इस कॉलोनी में सिर्फ और सिर्फ ब्लैक पीपल रहेंगे, इसमें वाइट पीपल रहेंगे। इस तरीके से कॉलोनीज़ को भी डिवाइड कर दिया गया है। तो दिस टाइप ऑफ डिस्क्रिमिनेशन हेल्ड नाउ ऑल्सो, अभी भी होता है, अभी भी होता है। अब इतना नहीं होता है, इतना अभी नहीं होता है, बट होता अभी भी है, इज़न्ट इट? वहाँ पे क्या किया गया है अमेरिका में कि कॉलोनीज़ को डिवाइड कर दिया गया है, एक तरफ वाइट पीपल रहेंगे सारे, एक तरफ ब्लैक पीपल रहेंगे। तो ये बहुत बड़ा डिस्क्रिमिनेशन होता है वाइट टू ब्लैक के ऊपर, जो कि माया एंजेलो ने फील किया है, उन्होंने फील किया है अपने इस चीज़ को। ओके, सो दिस वॉज योर लास्ट स्टैंजा। ओके, आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर टू यू। सो let's see the question of the day. Okay, so this is your homework. You should try this. Okay, the question says who are caged bird and free bird shown in the poem. अभी मैंने बताया कौन है caged bird, कौन है free bird, कौन है, ये कौन है और ये कौन है, जल्दी बताना कमेंट में। आंसर दिस क्वेश्चन, हु आर caged bird and free birds. caged bird कौन है और free bird कौन है? ओके, तो ये तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। अब देखते हैं पॉइंट टू पॉन्डर। जस्ट वेट, दिस पॉइंट टू पॉन्डर। ओके, अकॉर्डिंग टू योर ओपिनियन, इज इट गुड टू कीप अ वर्ड इनसाइड द केस? इफ यस और नो, सो वाई? इलैबोरेट योर आंसर इन 100 वर्ड्स। 100 शब्दों में आपको लिखना है इसका आंसर कि एक केस्ड बर्ड को, किसी एक केस्ड बर्ड को क्या पिंजड़े में रखना सही है और